So what do you mean by cancer? Cancer क्या होता है? What is cancer? Cancer is nothing but the abnormal growth, abnormal and uncontrolled growth of cells. Abnormal and uncontrolled growth. Abnormal मतलब क्या है? जो कि नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मली भी ग्रोथ होता है. अनकंट्रोल्ड मतलब क्या है? नॉर्मली भी ग्रोथ होता है, वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है. एबनॉर्मल एंड uncontrolled growth of cells of particular tissue or organ with the loss of functionality of the cells. जैसे लिवर के सेल का काम क्या सेल होते हैं? लिवर सेल has their own functions to metabolize their drug, to detoxify the drug. So if liver cell or liver carcinoma is there, whatever cells are multiplying over there, they are multiplying, they are dividing rapidly, asynchronously, uncontrolled manner, with the loss of their functional capacity. So that is nothing but the cancerous growth. ठीक है? So there might be a different, मतलब हर एक का अलग कैंसर होता है. So there is a little bit there is a difference there is a difference between chemotherapy of infectious disease and cancer, because there is a difference. Okay, chemotherapy of disease, chemotherapy of disease means what? So chemotherapy of infectious disease means what? So you are treating the infection, with the various kind of antibiotics, fungal drugs, anti-rickettsial, antiviral drugs. But in case of infectious disease, there is an invading organism, there is an outside organism in your body. So your body cells and your outside organism body cells, so there is a difference in both cellular function, different enzymes, the process of multiplication. These antibacterial drug or somewhat antiviral drug also, सब कुछ नहीं लेकिन एंटीवायरल ड्रग, सभी नहीं लेकिन कुछ कुछ एंटीवायरल ड्रग, they are targeted. Most of the antibacterial drug, few antiviral drug and other antimicrobial agents, they have specificity. They can selectively kill the microbial cell, they can selectively kill the fungal cell, they can selectively kill the virus cell little bit. But any chemotherapeutic agent or any anti-cancer drug, it cannot kill the cancerous cell without killing the normal cell. So there is one slogan, or there is one line, that is nothing but the you cannot kill the cancerous cell without affecting the normal cell. So normal, because cancerous cell are nothing but the आपके body की ही cell है ना, that is also your body cell. Your body cell, cancerous cell is also your body cell, having uncontrolled growth. They are having lost their function, uncontrolled, undesired, rapid. Okay, now this cancer may be of because of the different reason. If there is a mutation in the gene, हर एक का आपका जीन होता है, जीन सेल का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सब जब भगवान ने बना के भेजा है, तो सब कुछ सीपीयू में सब प्रोग्राम डाल के रखा है आपने, कि कब सेल डिवाइड होगा, कब नहीं होगा, कब कौन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे, कौन से हार्मोन एक्टिवेट होंगे, कब ये जीन का काम होगा, ये जीन कब उसका प्रोटीन बनाएगा. एवरीथिंग इज प्री प्रोग्राम्ड इन आवर माइंड, इन आवर body. So everything is pre-programmed. See what happens if there is any change in the gene. If there is any oncogen means any agent that can cause the cancer. Okay, if there is any oncogen, if there is any gene, so that leads to cancer. Okay, uncontrolled and abnormal growth of cells. So there is a difference between chemotherapy of infectious disease and cancer, because there is a basic difference in the infection. What is it? Infection is nothing but the foreign organism in your system or host. Foreign organism host में आता है. So bacteria, if bacteria get entry into your body, so bacteria is a foreign organism and your body is nothing but the host. So there is a difference between our host cell and microbial cell, biologically as well as metabolically. Biologically means, so there will be there will be biological difference. Okay, cell wall, then mitosis, meiosis, then replication, etc. Metabolically as well, chemotherapeutic agent or antibacterial agent, they can act selectively on the microorganism without affecting the host cell, कि वो बस बैक्टीरियल सेल को ही मारेगा, आपके सेल को धक्का भी नहीं लगेगा, मतलब आपके सेल को कुछ नहीं करेगा, बैक्टीरियल सेल को मारेगा. Maximum antibacterial drug, they are selective in nature. Few antiviral drugs also, they are selective in nature. But in case of cancer, what happens? Cancer is nothing but the your own body cell. So
there is no clear difference between metabolic reaction of normal cell and cancerous cell. कि cancerous cell will exactly look like a normal cell. Cancerous cell क्या होता है, normal cell के जैसे ही होता है, बस उसमें क्या होता है कि there is a high rate of metabolism, there is a high rate of division, there is a high rate of division, there is a high rate of metabolism, and it is with loss of function. So जो functional ability होती है सेल की वो loss होती है, and that cell they try to growing rapidly. There is no clear difference in the metabolic reaction of normal cell and cancerous cell. Therefore, any chemotherapeutic agent or any anti-cancer drug that cannot kill the cancerous cell selectively. तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में सेल वाल अलग है, बैक्टीरिया का सेल वाल अलग होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उसका बायोलॉजी अलग होता है, अपना होस्ट सेल का बायोलॉजी अलग होता है. सो ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कैन पर्टिकुलरली टारगेट दैट बैक्टीरियल सेल. अपन ने देखा है कितने टारगेट से, सम विल इनहिबिट द सेल वॉल, some will bind to DNA carriers, topoisomerase, 30S ribosome, 50S DNA polymerase. So that's why antimicrobial agent can selectively target the bacterial cell without affecting the host cell. तो host cell को कोई damage नहीं करेगा, कोई without affecting the host cell. Now there is no clear difference between cancerous cell and your normal cell, except cancerous cells जो होते हैं वो rapidly multiplying होते हैं. So there is no clear difference between metabolic reaction of normal cell and cancerous cell. Therefore, agent used to kill the cancerous cell can adversely affect your normal cell also. It means you cannot kill the cancerous cell without affecting the normal cell, because cancerous cell will look like exactly like a normal cell. Okay. Therefore, anti-cancer drug will not have specificity as that of the antimicrobial drugs. जैसे एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिसिटी होती है उसमें, they can act selectively on the bacterial cell, but anti-cancer drug cannot selectively inhibit the growth of your, or selectively cannot kill the growth of only cancerous cell, because cancerous cell and normal cell they will look like मेटाबॉलिज्म भी उनका सेम ही होगा, क्योंकि कैंसरस सेल क्या है कि आपके ही बॉडी के सेल है ना, बट वही कि उसका वो आपके हाथ से चला गया है. जो बच्चा होता है ना, एक बच्चा 17-18 17-18 एज हो गया किसी बच्चे का, ठीक है, अगर वो उसको अगर पंख निकल आए तो घर के लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया, क्योंकि आपने कंट्रोल से निकल गया. अभी क्या करना है, अभी वो जाने भगवान जाने, आपके कंट्रोल में से निकल गया बस. वैसे आपके बॉडी के सेल जो है, जो बॉडी के कंट्रोल में से निकल गए, वो क्या कर रहे हैं, खुद का ही फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So they have started dividing themselves rapidly. They have lost their own functions. That is nothing but a cancer. Abnormal, uncontrolled growth of cell with the loss of functions. That is nothing but the cancer. That is nothing but the cancer. Also, in case of infection, along with the antimicrobial drug used in the body, also help. Okay, so during the treatment of infection, so what happens, along with your drug, your body will also help you to clear that infection, because your body also has immunity system. तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग थेरेपी में क्या होता है कि ड्रग तो काम उसका कर ही रहा है माइक्रोबियल को किल करने का, उसके साथ में आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो भी उसको हेल्प करता है. योर बॉडी डिफेंस सिस्टम आल्सो हेल्प्स टू clear that infection, like antibodies, phagocytic cells. Okay, but in case of cancerous cell, what happens, cancerous cell is nothing but the cell of your body only. Okay, against that cell body will not produce antibodies. Here is again second difference. फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि सिलेक्टिविटी लैक होता है उसमें. दूसरा डिफरेंस क्या है कि उसमें इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं. सो also in case of infection, along with the antimicrobial drug used, your body also helps the drug by its own defense system, like antibodies, phagocytosis, producing the antibodies and all that. Okay, but in case of cancer in case of cancer, body will not support your anti-cancer drug by its defense mechanism. And that's why anti-cancer drug will not have specificity and will have high tissue toxicity. Okay, and one cannot use the anti-cancer drug in a high dose. If you use anti-cancer drug in a high dose, it can lead to toxicity. So anti-cancer drug will destroy all malignant cell as well as your normal cells. The difference
डिफरेंस आपको डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है कि इन्फेक्शन में आपका बॉडी भी आपका आपका बॉडी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग को हेल्प करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग फीवर, बाय प्रोड्यूसिंग मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटोसिस एक्सेट्रा। बट कैंसर सेल क्या होता है, आपकी बॉडी के सेल है, वो एंटीजन नहीं है। बाकी जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ कैंसर, कैंसर क्या है, वो आप ही के सेल है, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज नहीं बनती। सो एंटी कैंसर ड्रग इज नॉट हेल्प्ड बाय योर इम्यूनो सिस्टम, that is the second difference. So that's why anti-cancer drug, they are not selective in action, they will not able to differentiate कि एंटी कैंसर ड्रग को पता नहीं होता है कि कौन सा नॉर्मल सेल है कौन सा एबनॉर्मल सेल है, क्योंकि देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। जो कैंसरस सेल होता है नॉर्मल सेल में बस एक या दो ही डिफरेंस है। जैसे कि नॉर्मल सेल जो होता है वो उतना ज्यादा रैपिडली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। बस कैंसरस सेल क्या है कि रैपिडली डिवाइड होता है, बाकी कुछ नहीं। सो as there is no difference between normal cell and cancerous cell, or very few little difference between normal cell and cancerous cell, so anti-cancer drugs, they are not selective in nature, and anti-cancer drug, they can kill the cancerous cell and as well as your body cells, so particularly rapidly dividing cells। तो anti-cancer drug क्या करेंगे, आपके जो बॉडी के rapidly dividing cell होते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका बाल हो गया, सो बाल देखो आप काट लो आप 15 दिन में फिर से जैसी को वैसी, ठीक है, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग है। सो योर हेयर्स आर रैपिडली डिवाइडिंग, हेयर फॉलिकल। देन अगेन योर बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 7 days। ऑब्वियसली दे हैव टू रिप्लेस इट। योर डब्ल्यूबीसीज, दे आर आल्सो रैपिडली ग्रोइंग, डब्ल्यूबीसी आर रैपिडली ग्रोइंग, देन हेयर्स आर रैपिडली ग्रोइंग। देन इन केस ऑफ जीआईटी, म्यूकोज सेल, म्यूकोजा, दैट इज रैपिडली ग्रोइंग, ठीक है। इपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी, दैट इज रैपिडली ग्रोइंग, वो हर एक रिप्लेस होता है। जीआईटी की इपिथेलियल सेल का हेयर, बाद में जो भी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, हेयर्स हो गए आपके, एपिथेलियल सेल्स हो गए, म्यूकोजल सेल्स हो गए, स्किन हो गए, स्किन के ऊपर जो होता है वो रिप्लेस होते रहते हैं। इट इज नथिंग बट द एक्चुअली डिवाइडिंग योर बॉडीज नॉर्मल सेल। सो एंटी कैंसर ड्रग क्या करता है कि दे दे किल्स द रैपिडली एंड ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। तो वो एंटी कैंसर ड्रग कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन normal growing cell and your rapidly growing cancer cell, so it used to kill both. That's why most of the anti-cancer drugs, they will have a adverse effect, they will cause alopecia, they will cause gastroenteritis, then they will cause ulcers in the mouth, git, throat, etc etc, then they will cause alopecia, okay, etc etc। so that's why that is the reason behind that कि एंटी कैंसर ड्रग को क्यों साइड इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ना, कि आप भी कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, कि आप ही का सेल है ना, क्योंकि एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म भी सेम होगा, डीएनए भी सेम होगा, सब सेम है, एंजाइम्स वगैरह। सो एंटी कैंसर ड्रग लैक द सिलेक्टिविटी। कैंसर सेल कैन डेवलप रेजिस्टेंट टू एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर सेल कैन डेवलप रेजिस्टेंट टू एंटी कैंसर ड्रग, उसमें रेजिस्टेंस भी आ सकता है एंटी कैंसर ड्रग की। नॉर्मली योर सेल डिवाइड्स विद द प्रोग्राम्ड, ये आपका अगर सरफेस का सेल कुछ डैमेज हो गया तो वो रिप्लेस होता है। सो सेल नॉर्मल सेल यूज्ड टू डिवाइड इन दीज फेजेस, ओके। G0 फेज होता है इसमें, G1 फेज होता है, G1 फेज, देन S फेज एंड दिस, देन G2 फेज एंड माइटोटिक फेज। सो G1 फेज इज नोन एज इंटरफेज, S फेज इज नथिंग बट द interphase, that is a synthetic phase, G2 phase is also interphase। G1 G0 phase एक होता है, G0 यहाँ पे वैसे मान लीजिए यहाँ पे कट मारो, यहाँ पे G0 phase है, G0 phase में क्या होता है कि your cell prepares to divide, कि अपने को डिवाइड होना है तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, सब प्रिपरेशन होता है। सो G0 और टॉर्मेंट होता है उसमें। सो G0 में प्रिपरेशन का सिर्फ ये होता है कि करना है, माइटोसिस में so division of cell is done by two processes, mitosis and meiosis and mitosis, okay। So this mitosis takes place in the different phases, so G0 phase, G1 phase, S phase and M phase, okay, like that। G0 phase, G1 phase, S phase, G2 phase and this mitotic phase is known as M phase, it is known as a M phase, okay, M phase।
सो G0 फेज इसमें डॉर्मेंट होता है सेल इनएक्टिव होता है G0 फेज में। G0 फेज में सेल इनएक्टिव। G1 फेज में क्या है कि G1 फेज में पूरा सेल आपको खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। ओके, नाउ yes phase, that is a synthetic phase. Okay, synthetic phase, in that replication of DNA, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ओके, जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, डॉटर डीएनए बनता है और डॉटर डीएनए अलग होता है पेरेंट डीएनए से, तो उसका सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है G0। ओके, G1 G2 फेज में मतलब उसमें कोई और भी कोई एडिशनल वगैरह जो होता है वो होता है माइटोसिस, मतलब इसमें डिवीजन प्रॉपरली सेल डिवीजन होता है। ओके, माइटोटिक, ओके, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, so formation of two daughter cells in this phase. So this is just overview of how cell will divide. तो सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस में ये फेज होते हैं G0 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज एंड M फेज। तो G0 मतलब वो रेस्टिंग फेज होता है, G1 प्रिपरेशन होता है, S मतलब सिंथेसिस, सो डीएनए सिंथेसिस, G2 सेल ग्रोथ, माइटोसिस मतलब डिवीजन, अगर एक सेल के अलग सेल बने। So carcinoma, what is carcinoma? Carcinoma is cancer of epithelial tissue and sarcoma is a cancer of non-epithelial tissue. Carcinoma किसको बोलेंगे? Carcinoma is nothing but the cancer of epithelial tissue and sarcoma is cancer of non-epithelial tissue. We can distinguish between cancerous cell and normal cell with the respective of following. कि उसमें कुछ कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में कुछ डिफरेंस भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी सेम होता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है। सो ऑटोनॉमस एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ऑटोनॉमस और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन मतलब ये आके खुद से ही मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा सेल, कैंसर सेल, एंड उसको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अनकंट्रोल्ड proliferation. Second difference, differentiation and loss of function of cell. Dedifferentiation and loss of, तो उसमें क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा एंड उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। थर्ड डिफरेंस, इनवेजिवनेस एंड मेटास्टासिस। इनवेजिवनेस मतलब वो जहाँ है वहां से निकल के दूसरे टिश्यू को भी इन्वेड कर सकता है, उसमें भी जा सकता है। मेटास्टासिस मतलब ब्लड में भी सर्कुलेशन हो सकता है उसमें। नॉर्मल सेल साइकिल और प्रोलिफरेशन, नॉर्मली सेल डिवाइड कैसे होता है? प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन, तो ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है, उससे ही अकॉर्डिंगली सेल को डिवाइड होना है, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं होना है तो उसको बोलेंगे कैंसर सेल। नॉर्मल सेल साइकिल और प्रोलिफरेशन और प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन। सो the mechanism of cell division, that is divided into 5 phases. Okay? So first phase is nothing but the G0 phase or resting phase, it is known as a gap 0. It is non-proliferative phase, इसमें proliferation या फिर सेल ग्रोथ नहीं होगा। सेकंड फेज होता है प्री सिंथेटिक फेज और गैप 1 फेज। सो G1 फेज इज नोन एज अ प्री सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस का के लिए जो प्रिपरेशन, जो मटेरियल चाहिए, एडेनिन गुआनिन वगैरह सब, तो उसमें प्रिपरेशन हो जाएगा G1 फेज। देन S phase में synthetic phase, so actual synthesis of DNA takes place in this phase। then next होता है आपका G2 phase, post synthetic और gap 2। so in this phase जो DNA synthesis हो चुका है आपका किसमें, S phase में, जो DNA synthesis हो चुका है S phase में वो करेक्ट है या नहीं है, तो पोस्ट सिंथेटिक और G2 phase और gap 2, so it will check the accuracy of DNA replication, accurate DNA synthesis हो गया है नहीं। So accuracy of DNA replication will be checked in the G2 phase, and if any errors is there, so if any errors are there, they can be corrected। Okay, अगर गलत DNA synthesis हो गया तो वो सेल जो है वो सेल if there is a wrong DNA synthesis, then that cell is sent to apoptosis। apoptosis means program cell death, तो वो सेल को किल किया जाता है। if there is no correct DNA synthesizer, वो सेल मर जाएगा, उसको मारने के लिए भी। सेल साइकिल और प्रोलिफरेशन, नॉर्मल सेल साइकिल, प्रोग्राम्ड DNA replication, so that is done in a different phases। okay? so G1 known as a G0 is known as a resting phase or gap 0, that is a non-proliferative phase,
G1 is known as a synthetic pre-synthetic phase or gap 1. So individual cell will prepare itself for DNA synthesis, and S phase is nothing but the S means synthetic, and that is nothing but the synthesis of DNA, actual replication of DNA, actual synthesis of DNA. Okay. Now G2 phase, so post synthetic or gap 2. So in this, whether DNA is synthesized, whether synthesized DNA is correct or not, that is checked. If errors are there, they are corrected, and if you cannot correct the error, then that cell is sent to apoptosis or death. Now next phase is next phase is a M phase or mitotic phase. Replicated DNA chromosomes are separated into two nuclei. तो इसमें क्या, एक्चुअली इसमें ही डिवीजन होता है. सो एक सेल में क्या होगा, अभी डीएनए बन गया है. So now replicated DNA chromosomes, they are separated into two nuclei. दो अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लिया बनेंगे for the daughter cell G1 and date. Okay, daughter cell. Okay, two daughter cells. तो ये जो एक सेल में हो रहा है उसके दो सेल बनेंगे. टू न्यूक्लियाई विल बी there are two DNA chromosomes. The DNA chromosome will be separated into two nuclei. That is for two nuclei or daughter cells. ये for नहीं है यहाँ पे. Okay. So whatever DNA has been synthesized, the DNA chromosome will be separated into two nuclei or two daughter, for the two daughter. Now G1 dead cells may re-enter into the above phases. जो G1 है, G1 में कुछ G1 फेज में कुछ डेड सेल जो है वो फिर से भी साइकिल में आ सकते हैं. तो दिस इज अ नॉर्मल सेल साइकिल. हाउ नॉर्मल सेल विल डिवाइड, ये नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करता है उसकी साइकिल है. तो याद रखो ये साइकिल, बिकॉज जैसे नॉर्मल सेल डिवाइड होता है वैसे ही कैंसरस सेल भी डिवाइड होता है. बस वहाँ पे क्या है, ये अनकंट्रोल्ड सेल होता है. यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ना, यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल, प्रोग्राम्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ये नॉर्मल होगा. अनकंट्रोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे तो ये abnormal cell. So in case of cancerous cell, there is uncontrolled DNA replication and cell proliferation. Uncontrolled cell proliferation with loss of function is nothing but the cancerous cell. Normal cell कैसे डिवाइड होता है, ये G0, G1, S, S, G2 and M. G0 is resting phase, उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें कोई सेल ग्रोथ नहीं होगा. G1 में क्या है, प्री सिंथेटिक गैप, इसमें क्या है, सब सिंथेसिस के लिए तैयारी किया जाएगा. यस मतलब सिंथेटिक फेज, इसमें क्या है कि डीएनए बनने हैं. सो एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए, दैट इज इन यस फेज. इन द G2 फेज, तो जो डीएनए बना है वो प्रॉपरली बना है या नहीं बना है उसका रिव्यू किया जाएगा. ओके, एक्यूरेसी ऑफ डीएनए replication is determined, and if errors are there it is corrected. If you cannot correct the error, then the cell is sent to mitotic phase. Means replicated DNA chromosome will be divided or will be separated into two nuclei for two daughter cell. Dead cell from G1, they can re-enter the cycle of above pages. ये सब pages पूरे re-enter हो सकते हैं. Now topoisomerase 1 and 2. Okay, so we have seen in the topoisomerase in the quinolone antibiotics. Topoisomerase 1 and 2 has important role in the DNA replication. The cell, ये क्या रोल है इनका मालूम है anybody? What is the role of topoisomerase in the replication? Already हो चुका है. What is the role of this topoisomerase 1 and 2 in the DNA replication? Already हो चुका है यार, आप रिएक्ट भी नहीं करते कैसे, मुझे भी मोड नहीं आता पढ़ाने में. तो topoisomerase is having role, it is known as a DNA gyrase. What is the role? It will prevent the supercoiling and it will seal the nicks. जो ब्लड जो जहाँ से चालू हो गए वहां से रेप्लिकेशन जहाँ से चालू हुआ है और जहाँ पे खत्म हुआ है, तो उसमें दो एंड है, वो एंड सील करने का काम कौन करता है, टोपोइसोमरेज 1. और दे also release the negative supercoiling at another end. Now cell cycle transition between G1 and S and G and M is regulated with a greatly for proper cell division. तो ये जो सेल ट्रांजिशन होता है G1 फेज से S में और G1 फेज से S से M फेज में, it is regulated, G to M is regulated greatly with a proper cell division and with the minimum error, and checkpoints are determined by enzyme known as a protein kinase. ये एंजाइम जो है प्रोटीन काइनेज, सो दैट चेक्स द चेक पॉइंट्स, प्रॉपर सेल डिवीजन हो रहा है या नहीं. ठीक है, हर एक सेल में ट्रांजिशन जो हो रहा है प्रॉपर है या नहीं. सो दैट प्रोटीन काइनेज, दैट इज
cyclidine dependent kinase CDK. It is known as cyclidine dependent kinase CDK. So that this enzyme cyclidine dependent kinase or protein kinase will keep an eye on cell division process. So जो भी सेल ट्रांजिशन हो रहा है, सेल ट्रांजिशन डिफरेंट प्रोसेस में, सेल साइकिल में जितने ट्रांजिशन होते हैं, जैसे G1 फेज से आपका S में जाएगा, G0 फेज से G1 में जाएगा, G1 से S में जाएगा, S से आपका M में जाएगा, S से आपका J2 में जाएगा, J2 से आपका M में जाएगा. So these cell cycle transitions, they are regulated with a greatly for proper cell division. Greatly for proper. So for proper cell division, they are greatly regulated with the minimum errors. And checkpoints are determined by protein kinase, that is a cyclin dependent kinase. ये आपके बॉडी में सेल में होता है ये प्रोटीन. Progress of cell cycle depends on the balance between positive and negative regulatory forces. तो क्या है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है सेल डिवीजन का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस. मतलब पॉजिटिव फोर्सेस मतलब क्या? दैट कैन प्रमोट द सेल डिवीजन. पॉजिटिव फोर्सेस. नेगेटिव फोर्सेस मतलब क्या? दैट कैन इनहिबिट द सेल डिवीजन. ओके. नाउ पॉजिटिव फोर्सेस इंक्लूड्स CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट. नेगेटिव फोर्सेस नथिंग बट द ट्यूमर सप्रेसर जीन. ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब क्या? ये पॉजिटिव फोर्स जो है CDK, cyclidine dependent kinase, that will promote the cell division, and this tumor suppressor gene P53 gene, that will inhibit the cell growth. तो ये सेल को मल्टीप्लाई करने वाला फोर्स कौन सा है? CDK, cyclidine dependent kinase. इनहिबिट करने वाला ग्रुप कौन सा है? दिस इनहिबिट करने वाला फैक्टर ट्यूमर सप्रेसर जीन P53. ओके, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. When there is a damage to DNA, these inhibitors normally stop the cycles and allow DNA to repair. If repair is not successful, then cell undergoes series of programmed biochemical death known as apoptosis. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What is meant by apoptosis? Apoptosis is not program. Apoptosis is nothing but the programmed cell death. तो when there is a damage to DNA, these inhibitors and promoters, ठीक है, जैसे CDK will promote, tumor suppressor gene will inhibit. So when there is a damage to DNA, inhibitors normally stop the cycle. अगर डैमेज हुआ है तो वो साइकिल स्टॉप किए जाएगी, एंड वो जो सेल है वो सेल प्रोग्राम्ड डेथ के लिए भेज जाएंगी कि आप मर जाओगे. When there is a damage to DNA, there will be these inhibitors will stop the cycle normally, and cell will be sent to either repair, and if repair is not successful, then it will undergo programmed cell death known as apoptosis. So apoptosis or programmed cell death prevent the organism from abnormal cells. Normally आप बोलेंगे सर नॉर्मली कैंसर सबको क्यों नहीं होता? तो नॉर्मली एपोप्टोसिस होता है आपके बॉडी में अगर कोई गलती से गलत सेल बन रहा है, गलत डीएनए का सेल बन रहा है, that will be sent to apoptosis. So apoptosis prevents the organism from abnormal cells and removes the abnormal cells during the development and de-differentiation. So therefore acts as a first line defense against the mutation and renewal of the. So acts as a first line defense against the mutation and renewal of the cell with abnormal DNA that could be probable malignant cell. अगर abnormal DNA है उसमें तो वो कैंसर सेल भी हो सकता है. So this apoptosis normally prevent the process. Okay, अगर कोई abnormal जीन बन रहा है, abnormal DNA बन रहा है, तो उसको सेल को डायरेक्टली किल किया जाता है. Cell cycle control is disturbed by following in case of cancer cell. Normal cell cycle जो है, so anything that can disturb the cell cycle, they can possible oncogen. Oncogen means agent that can cause a cancer. Cell cycle control disturbed by following in case of cancer cell. तो भाई क्या क्या है, कौन कौन डिस्टर्ब करता है सेल साइकिल? एबनॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स फंक्शनिंग. अगर ग्रोथ फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, so that can cause problem or that can disturb a cell growth cycle. Okay, then अगर abnormal CDK function, if there is abnormal cyclidine dependent kinase, abnormal CDK function, that also leads to disturbed in the cell cycle growth. Cell cycle control is disturbed by abnormal growth factors functioning, abnormal CDK function, faulty DNA synthesis, and abnormal decrease in the negative regulatory forces due to mutation in the tumor suppressor gene.
ट्यूमर सर्जन क्या है, इट इज अ नेगेटिव फोर्स, उसमें म्यूटेशन हो गया तो ये सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नॉर्मल स्टडी के फंक्शन मतलब इसका फंक्शन अगर ज्यादा हो गया, इनका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, अगर ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा फंक्शन कर रहे हैं तो सेल ज्यादा ग्रोथ होगा। एबनॉर्मल स्टडी के फंक्शन, ज्यादा स्टडी के फंक्शन हो रहा है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, इसका फंक्शन अगर बढ़ गया तो सेल का ग्रोथ बढ़ जाएगा, सेल साइकिल बढ़ जाएगा। फॉल्टी डीएनए सिंथेसिस also causes the disturbance in the cell cycle. Then abnormal decrease in the negative regulatory force due to mutation in the tumors of the surgeon, that leads to disturbance in the cell cycle control. Anti-cancer drug, it may be. Anti-cancer drug, it may be. Okay, phase specific cell cycle activation. मतलब phase specific cell cycle activation means some drug they will act particularly at a particular phase. जैसे कोई सिंथेटिक फेज के ऊपर एक्ट करेगा, कोई G1 फेज में एक्ट करेगा, कोई G2 फेज में एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एंटी मेटाबोलाइट्स दे आर एस फेज स्पेसिफिक, विंका अल्कोलाइट्स आर एक्टिव इन द एम फेज, विंका अल्कोलाइट्स ये एम फेज में, एंड ये एंटी मेटाबोलाइट्स जो है मिथोट्रिक्स वगैरह, so they are active in the S phase. Are you getting my voice properly? Okay. Okay. So phase specific cell cycle activation मतलब क्या कि ऐसे एंटीकैंसर ड्रग जो पर्टिकुलर फेज के ऊपर एक्ट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फेज की, जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स आएगा आपको, एंटी मेटाबोलाइट में आएगा आपको मिथोट्रिक्सिन वगैरह वगैरह, मिथोट्रिक्सेट, ओके, मिथोट्रिक्सेट फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, तो वो रहेगा एंटी मेटाबोलाइट में, और भी बाकी है। तो दैट विल एक्ट ऑन यस फेज, यस मतलब सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेसिस के लिए क्या लगेगा आपको, सिंथेसिस के लिए आपको लगेगा सब हार्मोन, सब विटामिन लगेगा उसमें, सब ये एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन वो सब लगेगा, एंजाइम्स लगेगी, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, रिएक्शन के लिए important cofactor लगेंगे, so that cofactors they are required in the synthetic phase. Okay, so antimetabolite they act on a yes phase, they are the yes phase specific anti-cancer drug. Okay, then vinca alkaloids, vinca जो है कैथराइटिस रोजियस, okay, acanthaceae family, from that vincristine, vinblastine, these alkaloids are there, they particularly act on a yum phase, that is a mitosis phase. They are known as spindle poison, they inhibit the formation of spindle. Anti-cancer may be phase specific cell cycle activation or it may be phase non-specific. Okay? Phase non-specific मतलब क्या है? It can damage DNA at any phase. DNA को damage करेंगे at any phase. ये specific नहीं रहता, इनका कोई specificity नहीं है. So they bind to DNA, alkylate the DNA residue, and they can, the cell will be sent to prolonged death. Okay, so phase specific cycle, phase specific cell cycle activation like antimetabolite, vinca alkaloids, antimetabolite in the S phase, vinca alkaloids in the M phase. Non-specific cell phase, okay, phase non-specific agent, anti-cancer drug, they can damage the DNA at any phase. Alkylating agent, for example, alkylating agent and antitumor antibiotics, they are known as non-specific. Okay, phase non-specific antimetabolite, vinca, they are known as phase specific cell cycle activation. With these hormones also as an anti-cancer drugs. Okay, say hormones होता है आपका, most of the male hormones they are active against the cancer of most of the male hormones they are useful in the cancer of female. Most of the female hormones they are useful in the cancer of male. As you can see in this diagram, G0 phase, G1 phase, the yes phase, this is the G2 phase, and this one is the M phase. M phase means mitosis. Okay, mitosis. G1 phase, what happens? Synthesis of cellular components needed for DNA synthesis. Yes phase, DNA synthesis will be there. G2 phase, corrections will be there. Okay, corrections. And M phase, mitosis will be there, cell division. Now the synthetic phase, this anti-metabolite drug, जो भी anti-metabolite drug है, anti-metabolites they act on a yes phase, particularly replication of genomycin, anti-cancer antibiotic will act in a G2 phase.
alkaloids and taxanes, paclitaxel and alkaloids, paclitaxel and all that will act on a mitosis, spindle poisons. So there are different drugs. They can be a cell phase specific anti-cancer drug or cell phase non-specific anti-cancer drug. ठीक है, एग्जाम्पल बोला है होता है कि जी जीरो फेज मतलब डॉर्मेंट फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. मल्टीप्लिकेशन करना है सेल का, इफ सेल वांट टू डिवाइड, G0 phase is there. Okay, that is a pre-synthetic phase. Whatever components that are needed for the DNA synthesis, that will be prepared over synthesis. Synthetic phase means S phase. So DNA synthesis proper will be there here. G2 phase means post-synthetic corrections. ये synthesis हुआ है proper नहीं, उसका correction यहाँ पे हो जाएगा. Errors will be removed. Okay, if cannot remove, then apoptosis. Proper mitosis. Here will be a chromosome will be divided into two nuclei, and these two nuclei are nothing but they will develop into two different cells. You will get a daughter cells. These daughter cells, they may go into G0 phase, or these daughter cells may re-enter into this cell cycle. daughter cell एक सेल से दो सेल बनेगा, दो सेल दोनों सेल भी री-एंटर हो सकते हैं इसमें सेल साइकिल में, फिर से चार सेल बनने के लिए, या फिर एक आध सेल G0 में जा सकता है डॉर्मेंट में. कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग, कैंसर ड्रग. As I told you, you cannot kill the cancer cell without killing the normal cell. That's why most of the adverse effects are there. Bone marrow suppression. First main adverse effect is a bone marrow suppression. तो आपका जो bone marrow है उसका functioning suppress कर देगा. इसको क्या बोलते हैं? माइलियो सप्रेशन. इसको बोलते हैं माइलियो सप्रेशन. माइलियो सप्रेशन मीन्स बोन मैरो सप्रेशन. सो इसमें आरबीसी वगैरह जो है वो सब उसमें सब उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. माइलियो सप्रेशन, आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. सो ऑब्वियसली उसमें मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग दे विल हैव एनीमिया एज अ एडवर्स इफेक्ट, देन ओके एनीमिया एज एडवर्स इफेक्ट, न्यूट्रोपेनिया, ओके thrombocytopenia. So these will be the common adverse effect because they suppresses the bone marrow. Okay? Then that is the first one. Second one, alopecia or hair loss. So most of the anti-cancer drug के ये भी होंगे because alopecia or hair loss, but because it is the part, it is the cells that is hair growth, hair cells where there is a rapid metabolism, active metabolism. They are actively growing, rapidly growing. जो बाल होते हैं आपके hairs, they are rapidly dividing. That's why an anti-cancer drug act on a rapidly dividing cells only. Okay, so alopecia will be the second most common adverse effect. Nausea, vomiting, diarrhea, that will be the very common, both should. Then GIT mucosal damage. जो म्यूकोजा होता है आपका GIT है, GI पूरा आपका जो इंटेस्टाइन है GIT, उसके अंदर जो इपिथेलियल लेयर होता है, that will be damaged by anti-cancer drugs. So GIT mucosa damage or ulceration. Okay, that is the third one, common adverse effect. Fourth one is nothing but damage to gonadal organs. आपके reproductive organs होते हैं, जैसे testis हो गया in the males, because in the males जो testis होता है वहाँ पे continuous production of sperm cell होता है, वहाँ पे actively production of sperm cell होता है. So that's why they can damage the gonadal organ, they can decrease the sperm count, they can decrease the spermatogenesis. Okay, in the female they can have effect on that ovulation cycle. Okay, also they are teratogenic in the nature. ये common adverse effect, damage to the gonadal organ, teratogenicity. Okay, impaired wound healing, growth inhibition in the children. Obviously वो सेल को किल कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ भी इनहिबिट करेंगे. Okay, so these are the common adverse effect of anti-cancer drug. ये anti-cancer drug हर एक anti-cancer drug को ये adverse effect रहेगी. बोन मैरो सप्रेशन, alopecia, nausea, vomiting, GIT damage, GIT mucosal damage, ulceration, damage to the gonadal organ, teratogenicity. gonadal organ का damage मतलब spermatogenesis inhibit करेगा, ovulation inhibit करेगा, impaired wound healing in the children and growth inhibition in the children. Common adverse effect, common मतलब ये सब में आएगा आपको, ये तो आना है. बाकी इसके बाद में भी adverse effect आता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिटी हो गया या फिर कार्डियोटॉक्सिटी, हर एक ड्रग का फिर वो एडिशनल रहेगा, लेकिन ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन में सब में आएगा ही. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अल्कलाइटिंग एजेंट, फर्स्ट क्लास इज अल्कलाइटिंग एजेंट.
अल्कलाइटिंग एजेंट मतलब क्या क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मिथाइलेशन और एस्टाइलेशन ऑफ द डीएनए। तो डीएनए जो है उसकी जो बेस पेयर है उसमें क्या करेंगे, मिथाइलेशन करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अल्कलाइटिंग एजेंट। क्या आता है फर्स्ट क्लास में आता है उसमें सब क्लास नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड में एग्जांपल देखो, मेक्लोरिथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेल्फालान, देन यूरासिल मस्टर्ड एंड क्लोराम्ब्यूसिल। एग्जांपल्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। पहला क्लास है आपका अल्कलाइटिंग एजेंट, सो फर्स्ट क्लास इज द अल्कलाइटिंग एजेंट एंड इन दैट you have again three subclasses, okay, alkylating agent. So in that you have first nitrogen mustard, example is mechloroethamine, then cyclophosphamide, melphalan, then uracil mustard and chlorambucil. These are the alkylating agent. Then second subclass in alkylating agent is nothing but the ethylene amines, okay, amines. In that you have triethylene, okay, triethylene phosphoramide, that is known as thiotopa or triethylene thiophosphoramide, thiotepan, then alkyl sulfonate में आएगा आपका busulfan. So all these are the alkylating agent, they will cause acetylation or methylation to the DNA, okay. Now antimetabolite, okay, so in that you have again antimetabolite, in that you have again three subclass, folic acid antagonist, for example methotrexate, purine antagonist like 6-marketopurine, purine and azathioprine, purine analog है जो purine जो होता है purine pyrimidine basis उसका 6-marketopurine, azathioprine, purine antagonist, then pyrimidine antagonist, ठीक है। pyrimidine antagonist में देखो फ्लोरोयूरासिल, साइटोसिन अराबिनोसाइड, तो इसको ये बोलते हैं साइटोसिन अराबिनोसाइड को सिटाराबिन बोलते हैं, साइटाराबिन, ओके। देन फ्लोरोडीऑक्सियोडीन, दिस ड्रग, ओके, alkylating agent antimetabolic. Now next one is a radioactive isotopes, हर एक में इसमें सब प्लस है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में आएगा आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन, देन रेडियो गोल्ड एंड रेडियो फॉस्फोर। फोर्थ क्लास साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब सेल के लिए टॉक्सिक ऐसे एंटीबायोटिक, उसमें आएगा एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी, ऑक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन एंड रुबिडोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी, डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन एंड रुबिडोमाइसिन। क्लास आएगा आपका एंटी माइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट, तो माइटोसिस इनहिबिट करने वाले प्रोडक्ट, एंटी माइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट। सो इसमें आएगा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनकार्गोलाइट्स, देन टैक्सोल्स, टैक्सिन्स, इटोपोसाइड एंड कैम्पोथिकेन एंड टोपोटिकेन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, टैक्सोल, इटोपोसाइड्स, ये सब प्लांट प्रोडक्ट आएंगे, एंटी माइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट। नाउ हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, तो ईस्ट्रोजन आता है, उसका ईस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट आता है, प्रोजेस्टिन आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेमोक्सिफेन, ये एंटागोनिस्ट, टेमोक्सिफेन इज अ ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, फ्लूटामाइड, ciproterone acetate, growth hormone regulating hormone analog, octreotide. So all these are the hormonal drugs used as anti-cancer. Then monoclonal antibodies, उसमें आएगा trastuzumab, rituximab, imitinib, rituximab and imatinib. These are the monoclonal antibodies. They are also used in the cancer. उसका mechanism अलग है कि because anti-cancer drug is a very vast chapter. Then again biological response modifier or immunity modifier. So in that you have interferon, then BCG vaccine, levamisole, then miscellaneous anti-cancer drugs, hydroxyurea, aspergillus enzyme, then cisplatin is a platinum compound, then tretinoin is nothing but the vitamin A का derivative है, tretinoin, okay. So hydroxyurea aspergillus is enzyme, cisplatin is a platinum compound, tretinoin is a vitamin related compound. ये एक क्लास होगा एंटी कैंसर ड्रग का, ठीक है। इसके और भी क्लासेस के ऊपर ही अभी आज का लेक्चर फिनिश होने वाला है, क्लासिफिकेशन। आई एम गोइंग टू टेक 2-3 टाइम्स बिकॉज क्वेश्चन उसके ऊपर ही आता है, कौन सा इथिलियमाइन डेरिवेटिव है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ
नॉट अ अल्कलाइटिंग एजेंट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट। ओके, तो ऐसा, तो एंटी मेटाबोलाइट में एक याद रखो, एंटी मेटाबोलाइट में एक होता है फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट मिथोट्रिक्सेट, एंड जितने भी बाकी है उसमें सब प्यूरिन पिरिमिडिन आएगा। प्यूरिन पिरिमिडिन थायमिन, आपने कितने हैं प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन में आता है आपका थायमिन, ओके, साइटो एटीजीसी एडेनिन ग्वानिन, थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये सिर्फ 5 ही है ना, तो ये 5 इसमें आता है वो क्या होंगे एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। थायमिन, एडेनिन, थायमिन, ओके, साइटोसिन, यूरेसिल एंड सब जिसमें आएगा वो क्या रहेंगे, वो क्या रहेंगे एंटी मेटाबोलाइट रहेंगे। फोलिक एसिड वाले एंटी मेटाबोलाइट, methotrexate and all the purine and pyrimidine bases, all these are the anti metabolites, सिंपल है एकदम सिंपल। बाकी इसके इसके बाद में जो आएगा ये ऐसा मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेलफलान, यूरासिल मस्टार्ड, क्लोराम्ब्यूसिल, ट्राइथिलीन, थायोफॉस्फोरामाइड, थायोटेपा, ब्यूसल्फान, ये सब अल्कलाइटिंग एजेंट है, ठीक है, अल्कलाइटिंग एजेंट। सल्फन, सल्फन जो है, सल्फन में सल्फर आता है, सल्फर मतलब सल्फोनेट डेरिवेटिव है, अल्काइल सल्फोनेट, ब्यू सल्फान, उसमें सल आता है, सल्फा आता है उसमें, देखो ब्यू सल्फान में क्या आता है सल्फर, सल्फर मतलब क्या सल्फोनेट डेरिवेटिव। इथिलीना माइंस में क्या आता है, ये देखो थायोटेपा, थायोटेपा में क्या है, यहाँ पे लिखा है ट्राइथिलीन, ट्राइथिलीन, तो ये किसका डेरिवेटिव है, इथिलीना माइंस, इथिलीना माइंस, इथिलीनी माइंस, और थायोटेपा में थायो, ठीक है, ट्राइथिलीन, तो इथेनॉल। नाइट्रोजन मस्टर में क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, मेक्लोरोइथामाइन, अमाइन में क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है, साइक्लोफॉस्फा अमाइड, अमाइड में क्या है नाइट्रोजन है, इसमें भी मेल फालान में भी नाइट्रोजन है, यूरासिल में भी, यूरासिल ये एक्चुअली यूरासिल इससे कंफ्यूज नहीं होने का है, यूरासिल इज नॉट एंटी मेटाबोलाइट, यूरासिल अगर होता तो यूरासिल या फिर 6 थायो प्रोपाइल यूरासिल या फिर फ्लोरो यूरासिल होता है तो वो एंटी मेटाबोलाइट में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मस्टर्ड है, मस्टर्ड यूरासिल मस्टर्ड, सो इट इज अ अल्कलाइटिंग एजेंट, और क्लोराम्बिसिल इज अल्कलाइट, मतलब इतना इजी होता है क्लासिफिकेशन याद रखने का, तो बस आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ता है कि ये है क्या। कि रेडियो ओपेक में तो जितने भी मेटल्स आएंगे आयोडीन, गोल्ड, फास्फोरस, एंटीबायोटिक में क्या आएगा एक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, डाउनोरोबिसिन, देन रुबिडो, रुबिडोमाइसिन, ऑक्सोरोबिसिन, डाउनरोबिसिन, रुबिडोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी, एक्टिनोमाइसिन डी, और इट इज आल्सो नोन एज डेक्टिनोमाइसिन। इन एंटीबायोटिक, एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट उसमें सब विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टोपोटिकन, इटोपोसाइट्स, कैम्पोथिकन एंड टैक्सोल, दैट्स इट, सब प्लांट से आता है। हार्मोन्स में क्या है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और उनके एंटागोनिस्ट, दैट्स इट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आता है उसमें, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग आता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसमें सब मैप आएगा या नीप आएगा, ट्रस्टुजुमैब लास्ट में ये में भी आएगा, रितुक्जुमैब लास्ट में ये में भी आएगा, इमिटिनिब नीप आएगा उसमें मोनोक्लोनल। बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर मतलब उसमें एंटीबॉडीज आएगा, इंटरफेरॉन, देन बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन, लेविमिसोल, मिसलेनियस में आता है आपका हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्परजिनेस, एल एस्परजिनेस जो है वो एंजाइम है, यहाँ पे देखो निनेज, ठीक है, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, आइसोमरेज, एएजी लास्ट में आएगा, ठीक है, एसी, ये क्या है एस्परजिनेज, एंजाइम है, एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एस्परजिन टू एस्पर्टिक एसिड, ये उसका रोल क्या है बाद में अपन जब आएगा उसमें मैकेनिज्म में बोलूंगा। ओके, सो एस्परजिनेज, सो इट इज अ एंजाइम। सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन में तो एग्जैक्टली उसमें ये है कि ये प्लैटिनम कंपाउंड है। ओके, सो यू कैन इजीली रिमेंबर द क्लासिफिकेशन। अभी देखो एंटी कैंसर ड्रग, फर्स्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग, इस सेल को टॉक्सिसिटी करने वाले ड्रग है, टॉक्सिसिटी करेंगे। ओके, सो इन दैट anti-cancer drug classification 1, okay, in that you have alkylating agent, alkylating agent ये क्या करेंगे मिथाइलेशन करेंगे, इथाइलेशन करेंगे, अल्कलेशन करेंगे इसका डीएनए का। so in that you have different सब classes, so first is नाइट्रो, one is नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो ये नाइट्रोजन रहेगा, इसमें नाइट्रोजन में अमाइंस रहेंगे, अमाइड्स रहेंगे, ठीक है, तो ये देखो मेक्लोरोइथामाइन, मेक्लोरोइथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इपोस, इपोस्माइड, इपोस्पामाइड, इपोस्पामाइड, then chlorambucil and melphalan, okay, melphalan, chlorambucil, इपोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेक्लोरेथामाइन, ये क्या है इसमें सब अमाइड या अमाइन है,
मतलब अमाइड में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, अमाइन में भी क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सो नाइट्रोजन मस्टर, सिंपल थिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इथिलीन, इथिलीनामाइन, इथिलीनामाइन में क्या है, ये थायोटेपा, एग्जांपल क्या है इथिलीनामाइन का, थायोटेपा। तो इसमें क्या है, ट्राइथिलीन थायोफॉस्फोरामाइड, ट्राइथिलीन थायोफॉस्फोरामाइड, ट्राई थायो फॉर थायो, टेपा फॉर अमाइड, ओके, ट्राइथिलीन थायोफॉस्फोरामाइड, दैट्स इट, ये हो गया इथिलीन, इथिलीनामाइन। देन नेक्स्ट वन इज अल्काइल सल्फोनेट, अल्काइल सल्फोनेट, ये तो आपको इजीली समझ में आना चाहिए, व्यू सल्फन, व्यू सल्फन मतलब SULFAN, इसमें सल मतलब क्या, सल्फर है, तो अल्काइल सल्फोनेट, सल्फोनेट में सल्फर आएगा ना, इथिलीन अमाइन में थोड़ी आएगा। देन नाइट्रोस यूरिया, नाइट्रोस यूरिया, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोस यूरिया, नाइट्रोस यूरिया, ये क्या है, यूरिया में यूरिया रहेगा इसमें, कारामस्टिन एंड लोमस्टिन, कारामस्टिन लोमस्टिन, these are known as nitrous urea. And again in alkylating agent itself, triazine, triazine, tri मतलब थ्री, एजिन मतलब नाइट्रोजन, तो इसमें रिंग में 3 नाइट्रोजन रहेगा, डाइकार्बाजीन एंड टिमोजोलामाइड, टिमोजोलामाइड डाइकार्बाजीन, नेक्स्ट वन इज मिथाइल हाइड्रोजन, प्रोकार्बाजीन आएगा, कार्बाजीन। दीज आर द alkylating agent फर्स्ट क्लास, इसमें सब क्लास कितने, 1 2 3 4 5 6, second is nothing but the platinum, platinum compounds or platinum coordinate complexes, platinum coordination compounds or platinum compound और platinum coordination complex, इसमें सिस प्लाटिन आएगा, कार्बोप्लाटिन आएगा, ऑक्सालिप्टिन आएगा, ये तीनों भी क्या है, ये कार्बोप्लाटिन सिस प्लाटिन, इसके डेरिवेटिव जिसमें आएगा वो प्लेटिनम कंपाउंड, इसमें सब में प्लेटिन आता है, सिस प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ऑक्सली प्लाटिन, प्लाटिन मतलब प्लेटिनम कंपाउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास इज नथिंग बट द क्लास 3 नोन एज एंटी मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट, तो अभी इसमें प्यूरिन, pyrimidine एंड फोलेट, ये तीन याद रखो, प्यूरिन, pyrimidine एंड फोलेट, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ये क्या रहेगा इसमें, इसमें रहेगा मिथोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट एंड प्रेमेट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट एंड प्रेमेट्रिक्सेट, तो इसमें ट्रिक्सेट आएगा, इसमें ट्रिक्सेट और इसमें ट्रिक्सेट, ट्रिक्सेट ट्रिक्सेट, वो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ठीक है। देन प्यूरिन, प्यूरिन एंटागोनिस्ट मतलब ये इसमें सब प्यूरिन ही आएगा लास्ट में, ठीक है, जैसे 6 मार्कर टू प्यूरिन, 6 थायो आजा थायो प्यूरिन, देन फ्लूडराबिन, फ्लूडराबिन, एंड इसमें प्यूरिन स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। pyrimidine एंटागोनिस्ट में रहेगा, देखो प्यूरिन में क्या आता है आपका, वो प्यूरिन एंटागोनिस्ट में आएगा, pyrimidine में क्या आता है, वो pyrimidine एंटागोनिस्ट में आएगा, pyrimidine में क्या आता है, फ्लोरोयूरासिल, कैपेसिटाबिन एंड साइटराबिन, arabinosid, citarabine is also known as cytosine arabinosid, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन फर्स्ट, आर यू गेटिंग और नॉट, क्लासिफिकेशन कैसे याद रखना है, समझा। सो ऐसे 3 क्लासेस है, ये तो अभी एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 1, ठीक है, अभी एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 2, ओके। साइटोटॉक्सिक मतलब क्या है, साइटोटॉक्सिक मतलब दोज ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी टू द सेल, ये सेल को किल करेंगे, साइटोटॉक्सिक ड्रग, ओके। एंटी कैंसर ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग, दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वे, फर्स्ट साइटोटॉक्सिक ड्रग में ही आता है, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग का ही है, ठीक है, इसमें दोज ड्रग व्हिच डैमेजेस द माइक्रोट्यूबुल, तो माइक्रोट्यूबुल जो होता है, माइक्रोट्यूबुल सेल डिवीजन जब होता है माइटोसिस फेज में, ठीक है, तो माइक्रोट्यूबुल वहां पे बनता है, तो माइक्रोट्यूबुल को डैमेज करने वाले ड्रग कौन सी, विनकाल्कुलाइट, विनकाल्कुलाइट्स में आएगा विनक्रिस्टिन, आल्सो नोन एज ऑन्कोवेइन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड, ओके, विनोरेलेबिन, 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 ओके, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेले, टैक्सेंस, ये भी प्लांट से ही आता है, टैक्सेंस, टैक्सेंस, और इसमें टैक्सेन मतलब टैक्सोल आएगा, ये पैक्ली टैक्सेल, टैक्सेल, टैक्सेल डोसीटैक्सेल इन द टैक्सेन, एंड इसमें और एक आता है इस्ट्रामस्टिन, ये सब प्लांट प्रोडक्ट माइक्रोट्यूबुल को डैमेज करता है, तो आउट ऑफ दैट विंका एंड टैक्सेंस आर द प्लांट प्रोडक्ट, ये इस्ट्रामस्टिन जो है ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, सेकंड क्लास टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, फर्स्ट क्लास दोज डैमेजेस द माइक्रोट्यूबुल, उसमें भी 3 आता है आपको, विंका, टैक्सेंस एंड इस्ट्रामस्टिन, ये टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर में आता है इटोपोसाइड, ये प्लांट प्रोडक्ट है,
टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर इसमें आता है। इटोपोसाइड, तो ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। देन टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर, उसमें आता है टोपोटिकन एंड इनोटिकन। टोपोटिकन एंड इग्नोटिकन बोथ आर द प्लांट प्रोडक्ट। तो इसमें सिर्फ इट इज एक्सेप्ट दिस, ये जितने भी पहले है वो सब प्लांट प्रोडक्ट है, याद रखो। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स। तो उसमें अगर एक्टिनोमाइसिन डी, डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, इपिरुबिसिन, ये तीनों भी एक ही क्लास है। रुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, इपिरुबिसिन, इसके बारे में आपने देखा है ऑलरेडी। मिटोजैंथ्रोन, मिटोजैंथ्रोन एंड ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन सी। तो मिटोजैंथ्रोन मिटोमाइसिन सी का डेरिवेटिव। ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट वन इज अ मिसलेनियस ड्रग, सो इन दैट यू हैव हाइड्रोक्सीयूरिया, यल एस्परजिनेज। एस्परजिनेज इज नथिंग बट द एंजाइम, ये एंजाइम होता है, इसमें याद रखो। टिटेनोइन, टिटेनोइन एक विटामिन का ही डेरिवेटिव है। देन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो दिस इज द एंटी कैंसर ड्रग सेकंड। यहाँ पे देखो प्लांट के प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर से एक बार बताता हूँ। इसमें ही आपका 50% जो है एंटी कैंसर ड्रग कवर अप हो जाएगा। इतनी जो है वो सब प्लांट प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट ये सब प्लांट प्रोडक्ट है। सो विंका, टैक्सेल, इटोपोसाइड्स, टोपोटिकन सब प्लांट प्रोडक्ट है। देन एंटीबायोटिक एंड मिसलेनियस। ओके, नाउ एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन अगेन। टारगेटेड ड्रग्स एंड हार्मोनल ड्रग्स। कैंसर ड्रग 3 टारगेटेड ड्रग्स एंड हार्मोनल, ये न्यूअर एंटी कैंसर ड्रग्स, न्यू एंटी कैंसर ड्रग, टारगेटेड and hormonal drugs, targeted drugs. So tyrosine protein kinase inhibitor, तो tyrosine protein kinase inhibitor, इसमें सब एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। इमिटिनिब एंड निलोटिनिब, इमिटिनिब निलोटिनिब ये दोनों भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। सो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, इमिटिनिब एंड निटोटिनिब, ये दोनों भी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एबीज। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द EGF receptor inhibitor, antibodies ये monoclonal antibodies, जेप्टी, ओके, जेफीटिनिब, इरलोटिनिब, देन सिटुजिमैब, ये भी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये EGF रिसेप्टर क्या है ये बाद में देख लेंगे। बस आपको ये यहाँ पे इतना याद रखना है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स, इमिटिनिब, निटोटिनिब, EGF रिसेप्टर इनहिबिटर्स, जेफीटिनिब, nilotinib, cetuximab. Okay, then angiogenesis inhibitor, monoclonal antibodies है, sunitinib, sunitinib, then bevacizumab, 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 sunitinib, then proteome inhibitor, उसमें भी एंटीबॉडीज है monoclonal, ये सब में monoclonal antibodies है because they are known as targeted drugs, ये नए ड्रग्स, bortezomib, then monoclonal antibody again rituximab, टिनिब एंटीबॉडीज। नाउ हार्मोनल ड्रग्स में क्या आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हार्मोनल ड्रग में एक आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें प्रेडनी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आएगा प्रेडनिसोलोन, देन आपका डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ट्राइमसिनोलोन वगैरह। देन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में क्या आएगा, इथाइल एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोल। देन selective serotonin, selective estrogen receptor modulators, SERMs, selective estrogen receptor modulators, tamoxifen आएगा उसमें, और टोरेमिफेन आएगा, tamoxifen। क्वेश्चन आ चुका है इसका, one of the following is selective serotonin receptor modulator used in the treatment of cancer, tamoxifen, ऐसा ऑप्शन था उसमें, ये सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट, ओके, okay, selective estrogen down regulator, fulvestrant, okay, fulvestrant, so ये selective estrogen down regulator है। एक नया क्लास है aromatase inhibitors, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। aromatase inhibitors में आएगा लेटर, ओके, aromatase inhibitor मतलब ये एक aromatase नाम का एंजाइम रहता है, it has a role in the ergosterol होता है, ergosterol का एरोमेटेज इनहिबिटर क्या करता है, कन्वर्जन करता है किसमें, प्रोजेस्टिन्स में। सो एरोमेटेज इनहिबिटर इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ergosterol into progestin. So aromatase inhibitors, letrozole and, okay, letrozole
anastrozole and exemestane, letrozole, anastrozole and exemestane. So क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. All these are known as aromatase inhibitor. Then anti-androgens. Anti-androgens में आता है flutamide and bicalutamide. Flutamide and bicalutamide. Bicalutamide और bicalutamide जो भी आप बोले. Bicalutamide, bicalutamide या bicalutamide. So anti-androgen. So ये testosterone के antagonist है. अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर उसमें आता है फिनास्टेराइड एंड डूटास्टेराइड. स्टेराइड क्या है? फाइव अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर. इसका रोल क्या है वो बाद में देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्लास आता है इसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स मतलब ये प्रमोट करेंगे ग्रोथ हार्मोन. इसमें आता है नेपारेलिन, देन लुपिप्रोरेलिन, देन triptorelin, neparelin, leucoprolelin, then triptorelin. Okay, relins आता है उसमें. ग्रोथ हार्मोन TSR को आगे relins, RELIN. So relins they are nothing but the growth hormone regulating hormone analogs. Steroids are nothing but the alpha reductase inhibitors. So finasteride, azoles, letrozole, anastrozole, okay, anastrozole. They are known as aromatase inhibitor. Amide and bicalutamide. They are anti-androgens. Last one is a progestin. So progestin में आता है hydroxyprogesterone acetate. Okay. So this is the classification only. Today we are only going to take this classification again. ठीक है. यहाँ पे classification बहुत ही important है. Classification बहुत ज़्यादा important है. उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है. तो आप अल्कलाइटिंग एजेंट में आपका आएगा. अल्कलाइटिंग एजेंट में 1 2 3 5 6 सब क्लासेस आएगा. देयर आर 6 सब क्लासेस इन द अल्कलाइटिंग एजेंट. फर्स्ट वन इज अ नाइट्रोजन मस्टर्ड. उसमें मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ओके, इपोफॉस्फामाइड, क्लोरम्बिसिलिन, मेलफालान. इथिलीन अमाइन में आएगा आपका थायोटेपा. ठीक है. अल्काइल सल्फोनेट में आएगा ब्यूसल्फान, नाइट्रोसोडियम आएगा कार्मस्टिन, लोमस्टिन. ट्रायाजिन में आएगा डेकार्बाजिन, टेमोजोलोमाइड. देन मिथाइल हाइड्रोजन में आएगा प्रोकार्बाजिन. प्लैटिनम कंपाउंड में आएगा आपका सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ऑक्सैलिप्टिन. ठीक है. ऑक्सैलिप्टिन नहीं, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, ऑक्सैलिप्टिन है लेकिन प्लैटिनम का ही कंपाउंड है. मतलब ऑक्सैलिप्टिन, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, ऑक्सैलिप्टिन. फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट में आता है आपको मिथोट्रिक्सिड, प्रेमाट्रिक्सिड. एंटीमेटाबोलाइट में आता है. एंटीमेटाबोलाइट में 3 आता है आपको फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड pyrimidine एंटागोनिस्ट. ठीक है. फोलेट में आता है मिथोट्रिक्सिड, प्रेमाट्रिक्सिड. प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6 मार्केप्टोप्यूरिन. मार्केप्टो मतलब ये थायो, मार्केप्टो मतलब ये सल्फर आएगा. 6 मार्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोगोनिन, आइसोथायोप्यूरिन एंड फ्लोडेराबिन. pyrimidine एंड एंटागोनिस्ट में आएगा 5 फ्लोरोयूरासिल, सिटाराबिन एंड कैपेसिटाबिन एंड साइटाराबिन में इसको ये बोलते हैं साइटोसिन अराबिनोसाइड. ठीक है. टॉक्सिक ड्रग क्लासिफिकेशन अगेन. तो फर्स्ट जो है माइक्रोट्यूबुल डैमेज करने वाले ड्रग, उसमें विनकाल्कुलाइड्स आएगा, टैक्सिन्स आएगा एंड इस्ट्रामस्टिन आएगा. सो विनकाल्कुलाइड्स में विनक्रिस्टिन, also known as oncovin, vinblastine and vinorelbine. Okay. Then taxanes में आएगा paclitaxel and docetaxel. Okay. Then istramustin भी आता है. Okay. Then topoisomerase 2 inhibitor में आता है etoposide. Topoisomerase 1 inhibitor में आता है topotecan and irinotecan. So out of that, except istramustin, all are the plant product. Cancer antibiotic में आता है actinomycin D, doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, mitoxantrone, bleomycin and mitomycin C. Next compound में आता है hydroxyurea. L-asparginase is the enzyme. Tretinoin is the vitamin compound and arsenic trioxide. Targeted
एंड हार्मोनल ड्रग्स। तो पहले देखो हार्मोनल ड्रग्स, ठीक है। हार्मोनल ड्रग में क्या आएगा आपका, मतलब ये सब इसमें, ओके। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन सब आएगा। उसके बाद इस्ट्रोजेंस, इस्ट्रोजेंस डायरेक्ट इस्ट्रोजन का होता है इथाइल एस्ट्राडायोल एंड फोसे, ओके, फॉस्फेस्ट्रॉल, इथाइल एस्ट्राडायोल फॉस्फेस्ट्रॉल, ओके। देन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, selective estrogen receptor modulator tamoxifen and टोरेमीफेन, tamoxifen टोरेमीफेन, फेन में आएगा एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स, फेन, ठीक है। tamoxifen टोरेमीफेन, selective estrogen down regulator, स्ट्रैट, ओके। नाउ aromatase inhibitor में ट्रोजोल्स, ओके, ट्रोजोल्स aromatase inhibitors, letrozole, anastrozole and exemestane। एंटी एंड्रोजन्स में आएगा फ्लूटामाइड, बाइकालुटामाइड, बिकालुटामाइड और बाइकालुटामाइड। टामाइड में क्या आएगा, एंटी एंड्रोजन्स में आएगा। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में स्टेरॉइड्स आएगा, फिनास्टेरॉइड एंड ग्लूटास्टेरॉइड्स। हार्मोन एनालॉग में आएगा आपका रेलिन्स, निपारेलिन्स, लुपी, ओके, ल्यूप्यू, ल्यूप्रोलिन्स, देन ट्राई, ओके, ट्राइप्टोरेलिन, ओके, निपारेलिन, लुप्रोरेलिन, एंटोरेलिन, निपारेलिन, ल्यूप्रोरेलिन एंड ट्रिप्टोलेन। एक्चुअली दीज आर द टंग ट्विस्टर वर्ड्स, तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। प्रोजेस्टिन्स, प्रोजेस्टिन में आएगा आपका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड अदर डेरिवेटिव। अभी टारगेटेड ड्रग्स में क्या आएगा, सब एंटीबॉडीज वगैरह के ड्रग आएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाली। तो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, उसमें आएगा इमिटिनिब, नीलोटिनिब, इमिटिनिब, नीलोटिनिब। ईजीएफ इनहिबिटर्स आएगा, जेप्टिनिब, जेप्टिनिब, जेप्टिटिनिब, देन इरलोटिनिब एंड सिटुजिमैब, ये सब एंटीबॉडीज हैं। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, सुन्निटिनिब, विभासिजुनिमैब, विभासिजुमैब। प्रोटियोम इनहिबिटर में आता है बोर्टेजुमिब। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। समझ में आया क्या आपको? थोड़ा सा ये थोड़ा सा है, ड्रग के नाम उतना इजी नहीं है याद रखना, आई नो, बट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज